Morning, Chapter 1, 10th class Science, Chemical Reaction and Equation. So, what is chemical reaction? Molecules to form new chemicals is called chemical reaction. पहले केमिकल रिएक्शंस को इतना लेंथी फॉर्म में लिखा जाता था, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल. इसमें क्या होता था, इतना लेंथी फॉर्मेशन होता था और इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती थी. क्या आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पा रही? बस इतना ही पता चल पा रहा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कंबाइन होकर क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं. तो कुछ टाइम बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इसे कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए. So this is called chemical reaction and chemical equation. इसमें क्या समझ में आया? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, वाटर का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और उससे एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया. क्लियरली डिफाइन हो गया. अब देख के समझ भी सकते हैं, सिंपलर फॉर्म है. इंफॉर्मेशन भी मोर है. So in this chapter we learned that how to balance this chemical reaction. So first we learn about the balance equation and the next the properties of this chemical reaction. So when this molecules react, it change in its state, in their color, in their temperature, and sometimes evolution of gases. तो क्या पता चलता है इस इक्वेशन से? ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट्स. In left hand side, what will be returned is called reactant, and on right hand side, what will be formed is called product. So here more than one reactants also, and here the products formed is also have more than one. And this plus sign shows that more than one molecule is used. This arrow shows us that reaction goes in forward direction. And if this type of arrow is there, then it will be indicating the backward direction. Sometimes pressure, heat, temperature and catalyst are used in reactants to form the products. Sometimes pressure symbol, heat, temperature is written over here. At this temperature the reactions are compounds to form this product. And what is catalyst? Catalysts are that chemical molecules or chemical substance increase the rate of reaction without involvement of itself. मतलब ये खुद इन्वॉल्व ना होके केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. Symbols are used. This defined for solid
It is for liquid. It is for gaseous form. And sometimes you see this AQ is written, which indicates aqueous form. Aqueous form, what is aqueous form? आप सोचेंगे कि लिक्विड भी लिख सकते हैं, एक्वस ही लिखना क्यों जरूरी है? तो अगर सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है और उसका सॉल्वेंट वाटर है, तो वहां पर आपको क्या लिखना है? एक्वस फॉर्म. This chapter we learn about 4 types of chemical reaction. First is combination reaction. Second is decomposition reaction. Third is displacement reaction. And fourth is double displacement reaction. इसके अलावा भी हमें और रिएक्शंस पढ़नी है, पर मेनली दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस ओनली 4 रिएक्शन. फर्स्ट, combination reaction. What the definition is? The type of chemical reaction in which 2 or more than 2 reactants combine to form the single product or more than one product is known as combination reaction. So what you learn? Combination reaction means combine or synthesize, because यहाँ पे कुछ new product form हुए. फॉर्म मतलब बनना. 2 रिएक्टेंट से मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट या मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. लाइक एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल्स किस किस से मिलके बनता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से मिलके वाटर होता है. तो क्या हुआ यहाँ पर? The hydrogen molecules combines with oxygen molecules to form water molecule. So what is decomposition reaction? Next is decomposition reaction. So what is the meaning of decompose? The breakdown और किसका टूटना. Like AB कोई reactant है, किस फॉर्मेट में टूट रहा है? वो A plus B. So what is the definition of decomposition reaction? That the single reactant broke down into 2 or more than 2 products. So here we written AB, that is reactant, break down into 2, A plus B, that is product. In this example, you clearly seen that calcium carbonate, which is a single reactant, in the presence of heat, broken down into calcium oxide plus carbon dioxide gas. So what is this arrow significance? This upward arrow significance the gas. अगर किसी रिएक्टेंट के टूटने पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसमें से एक प्रोडक्ट अगर गैसियस फॉर्म्स में, तो अपवर्ड एरो आता है. और अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, दैट इज इनसॉल्युबल कंपाउंड, तो एरो डाउनवर्ड शो होता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? अगर आप किसी फ्रेंड को आपके बोलते हैं कि साइड हो जा, और अगर वो बेंच में साइड नहीं देता है आपको, तो आप क्या हो जाते हैं? एंग्री हो जाते हैं, मैम से कंप्लेन करते हैं कि मैम ये हमें यहाँ बैठना है, आज हमें यहाँ पर बैठने नहीं दे रहा. तो आप क्या हुए? मोर रिएक्टिव. आपने कंप्लेन करी, मैम आपकी सुनी, तो आप मोर रिएक्टिव सबसे. तो यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसा ही है. जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल्स. लाइक A plus BC. A is more reactive than B. तो उसने क्या करा? उसको रिप्लेस कर दिया, उसके एक्चुअल पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कर दिया. सो इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स पोजीशन. Here we clearly see that example, zinc is element in copper sulfate. It displaces copper from copper sulfate to form the precipitate of copper and combine to form zinc sulfate. Fourth reaction is double displacement reaction.
व्हाट इज मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जैसे अभी आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक मॉलिक्यूल को आपने दूसरे मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल को लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस कर दिया था। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होंगे, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर जैसे आपने उस टाइम देखा था उसकी प्लेस ले ली थी, वो कहाँ बेटा आपको उससे कोई मतलब नहीं मिला। बट अभी यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, अगर आपने उसकी सीट ली तो आपको उसे भी खुद की सीट देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर है एक मॉलिक्यूल AB और सेकेंड मॉलिक्यूल है CD। अगर मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल है ये और ये, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेंगे आपस में, ना किसी का लेस हुआ और ना किसी का प्रॉफिट हुआ। In double displacement reaction, there is a mutual exchange of molecules. So, what is example? NaOH plus HCl. ये NaOH था, ये HCl था। यहाँ से ब्रेकडाउन Na ने किसके साथ रिएक्ट करा? Cl के साथ, और OH ने H से मिलकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया। तो ये क्या हुआ? सॉल्ट। NaCl क्या होता है? सॉल्ट, और ये है वाटर। एक्वस सॉल्यूशन किसका बन जाता है? नमक का पानी। So there are more reactions, more than these 4 reactions that are thermochemical, photochemical reactions, and electrochemical reaction. So what is the mean by these 3 types of reaction? अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि एनर्जी यूज होती है। कभी कभी दो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी यूज होती है, या अगर रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। सो इन विच फॉर्मेट? अगर वो हीट के फॉर्म में एनर्जी तो क्या है? थर्मोकेमिकल। अगर लाइट के फॉर्म में एनर्जी तो फोटोकेमिकल। और इलेक्ट्रिसिटी लाइक एनोड कैथोड के फॉर्मेट में एनर्जी है तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मोर 2 types of reaction, first endothermic reaction and second is exothermic reaction based on energy. अगर एनर्जी यूज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी यूज हुई है। दो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में अगर एनर्जी यूज हुई है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो एक्सो। एक्सो मतलब एक्सपेल आउट, और एंडो मतलब यूज्ड इनसाइड। So here we clear about these 2 types of reaction. सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर में पढ़ना रहता है, और केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन वाले कभी भी समझना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। कभी भी रिडॉक्स का मतलब क्या है? 2 वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड सन ऑक्सीडेशन। 2 वर्ड से मिलकर रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कभी रिडक्शन होता है तो सिर्फ रिडक्शन नहीं होता है, एज वेल कहीं ना कहीं उसका ऑक्सीडेशन भी हुआ ही होगा। दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। अगर किसी रिएक्टेंट का मान लो A रिएक्टेंट है और B रिएक्टेंट है, अगर इसका प्रोडक्ट बनाते टाइम ऑक्सीडेशन हुआ है डेफिनेटली इसका क्या हुआ होगा? रिडक्शन। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट रिडक्शन हुआ है कि ऑक्सीडेशन हुआ है? तो मेनली ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहीं हुआ है रिएक्टेंट्स में तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो उसको क्या बोलते थे? रिडक्शन। बट ये तो बहुत पहले बोला जाता था, ये बहुत सिंपल फॉर्म में है रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझाना। नाउ अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और अगर एज वेल एडिशन हुआ हो हाइड्रोजन का तो क्या बोलते हैं? रिडक्शन। एंड अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो भी क्या बोला जाता है? कि ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन हुआ है उस मॉलिक्यूल का। और सिमिलरली अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो उससे क्या बोला जाता है, रिडक्शन। तो इन तीनों को कंबाइन करेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में, तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, दैट addition of oxygen molecule, removal of hydrogen molecule or removal of electrons is combinedly called oxidation reaction. And as well in reduction reaction, if removal of oxygen, addition of hydrogen and addition of electron, this combinedly called reduction reaction. So here we see new words, that is reducing agent and oxidizing agent. So what do you understand by agent in English? Here we learn about the chemistry, that is science, but you know about English also, that what is the meaning of agent. आपने सुना है LIC एजेंट, क्या करता है LIC एजेंट, आपकी लाइफ सिक्योर करता है कि खुद की लाइफ सिक्योर करता है, वो आपकी लाइफ सिक्योर करने के लिए आपकी LIC पॉलिसी कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, LIC एजेंट। तो वो किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। तो सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, किसी और को रिड्यूस करते हैं, खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, बट रिड्यूसेस अदर मॉलिक्यूल, सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली खुद क्या हो रहा है, oxidizing agent oxidizes other and reduces itself. आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद रिड्यूस हो जाता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस करता है।